Hello everyone and welcome to my YouTube channel Biology Simplified. Today we will discuss about parts of brain. So brain can be divided into three major parts, and what are these three major parts? These are forebrain, midbrain and hindbrain. So तीन major parts में हम brain को divide कर सकते हैं. This part is the forebrain. Then you have the midbrain which is present here, and then the last part is the hindbrain. Okay, so majorly we are dividing brain into three parts: forebrain, midbrain and hindbrain. Let us talk about the first part. जो first part है which is forebrain. Now forebrain में क्या क्या आता है? It consists of cerebrum, it consists of thalamus and hypothalamus. So this is the part cerebrum. This is cerebrum. ये cerebrum है. Next is thalamus. So this part is thalamus, which is present, which is a part of the forebrain. Okay, and the last part is hypothalamus. So this part is hypothalamus. Fine. So these three parts, cerebrum, thalamus and hypothalamus, are the main parts of forebrain. Forebrain also forms the major part of the human brain. जो human brain का सबसे major part है वो forebrain ही होता है. Now forebrain के center से एक deep cleft या एक गड्ढा आपको दिखाई देगा, which is longitudinally dividing the cerebrum into two equal parts. Okay, so you can see here, this is the cleft which we are talking about. This cleft is basically dividing cerebrum into two equal parts. Okay, and these two equal parts are called as right and left cerebral hemispheres. We will see in this diagram also, this is the cleft which we are talking about. Okay, so this cleft, ये जो गड्ढा आपको दिखाई दे रहा है, so this is dividing, ये जो पूरे सेरिब्रल हेमिस्फेयर को, इस पूरे सेरिब्रल हेमिस्फेयर को वो बेसिकली डिवाइड कर रहा है दो इक्वल पार्ट्स में. ओके, सो यू हैव the right and the left cerebral hemispheres. Okay, so these two parts basically are being divided by the cleft. Okay, so these two parts are formed when the cerebral hemisphere is divided from the longitudinal axis by this cleft. जो क्लेफ्ट उसको लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करेगा तो हमारे पास राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स हमको मिल जाएंगे. फाइन. नाउ दीज हेमिस्फेयर्स, ये जो हेमिस्फेयर्स है ये आपस में कनेक्टेड होते हैं. ओके, एंड दे आर कनेक्टेड बाय द ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स. नर्व फाइबर्स का एक पूरा गुच्छा इनको कनेक्ट करके रखता है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम. फाइन. सो दिस नर्व फाइबर ट्रैक्ट इज व्हाट यू कॉल एज कॉर्पस कैलोसम. एंड ये जो नर्व फाइबर का ट्रैक्ट है, जो कॉर्पस कैलोसम है, वो दोनों पार्ट्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर, राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर को कनेक्ट करके रखेगा, आपस में जोड़ के रखेगा. ऑलराइट, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ कॉर्पस कैलोसम. If we see corpus callosum here in the dorsal view, this is how it looks like. So ये जो आपको blue color का जो ये आपको this fibrous structure which you can see in the diagram, this is corpus callosum. Corpus callosum. Okay, so this part is basically ये जो nerve fibers का tract है, ये right और left cerebral hemispheres को इकट्ठे जोड़ के रख रहा है. Okay, so this is the dorsal view, and in sagittal view this is how it looks like. All right, so this was about corpus callosum. Next is the layer of cells which covers the cerebral hemisphere. जो cerebral hemisphere के ऊपर पूरी cells की जो layer है वो cerebral cortex कहलाती है. और जो cerebral cortex है वो smooth layer नहीं है, हमको बहुत सारे folds उसमें दिखाई देते हैं. Okay, so you can see lot of prominent folds हमको उसके ऊपर दिखाई दे रहे हैं. सो गड्ढों की तरह दिखता है, कोई पोर्शन उसका उभरा हुआ होगा, कोई उसका नीचे की तरफ होगा. फाइन. सो उसमें जो पोर्शन ऊपर की तरफ उठा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस पोर्शन जो ऊपर की तरफ उठा हुआ है, इसको हम बोल देते हैं गायरस. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज गायरस. और वो पोर्शन जो नीचे की तरफ है, जो गड्ढे की तरह है, उस पोर्शन को हम बोलते हैं सल्कस. Okay, so in this diagram also you can see this is the sulcus, and this portion which is prominent जो ऊपर की तरफ है वो गायरस है. All right, so अगर हम इस डायग्राम में देखें, so क्या गायरस होगा और क्या सल्कस होगा. ये जो पार्ट्स जो ऊपर की तरफ उठे हुए हैं they are called as गायरस, और जो पार्ट्स जो आपको क्लेफ्ट दिख रहे हैं, जो नीचे की तरफ हैं या फिर जो अंदर की तरफ घुसे हुए हैं,
जो पार्ट्स नीचे की तरफ हैं या फिर जो आपको क्लेफ्ट्स दिखाई दे रहे हैं, these are what you call as sulcus. Okay, so these are gyrus and sulcus which are present on the surface of cerebral hemisphere. क्योंकि जो cerebral hemisphere की surface है वो smooth नहीं है. ओके, सो इट हैज मेनी प्रोमिनेंट फोल्ड्स. प्रोमिनेंट मतलब जो हमको आराम से दिखाई दे रहे हैं, काफी रिमार्केबल फोल्ड्स हैं उसके ऊपर जो हमको दिखाई दे रहे हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट है सेरिब्रल कॉर्टेक्स. जो है उसको हम ग्रे मैटर भी बोलते हैं क्योंकि वो ग्रेश अपीयरेंस देता है. बाहर से देखने में इट लुक्स लाइक ग्रेश. ओके, और वो क्यों है? बिकॉज वहां पर जो बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं उनकी सेल बॉडीज कंसंट्रेटेड है. सो द सेल बॉडीज ऑफ वेरियस न्यूरॉन्स आर कंसंट्रेटेड इन दिस पार्ट ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स. ये पूरे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, इसमें सब में जो सेल बॉडीज हैं वो कंसंट्रेटेड हैं न्यूरॉन्स की, और इसकी वजह से ये एक इसको ग्रेश अपीयरेंस देते हैं. सो दे अपीयर ग्रे इन कलर. ओके, एंड देयरफॉर यू कॉल देम एज ग्रे मैटर आल्सो. फाइन, द सेरिब्रल कॉर्टेक्स देयरफॉर इज रेफर्ड टू एज ग्रे मैटर. सेरिब्रल कॉर्टेक्स में बहुत सारे मोटर एरियाज प्रेजेंट होते हैं और सेंसरी एरियाज प्रेजेंट होते हैं, और कुछ ऐसे भी रीजन्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम ना तो मोटर ना ही सेंसरी में डिवाइड करते हैं. फाइन, सो दिस इज व्हाट विच इज प्रेजेंट इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एरियाज. मोटर एरियाज बेसिकली वो एरियाज हैं जो कि कमांड्स ब्रेन से लेकर जाते हैं, जो बेसिकली मोटर नर्व्स के थ्रू अपनी कमांड्स भेजते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में. सेंसरी नर्व्स का क्या काम है? सेंसरी नर्व्स जो हैं डिफरेंट सेंस ऑर्गन से सब चीजें सेंस करके ब्रेन की तरफ लेकर आती हैं. ठीक है, सो सेंसेस जो हैं, सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वो डिफरेंट चीजों को परसीव कर रहे हैं और वो सभी चीजें सेंसरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक पहुंचती है इन सेंसरी एरियाज में. ओके, सो फॉर एग्जांपल ब्रेन में कैसे प्राइमरी विजुअल एरिया है, सेकेंडरी विजुअल एरिया है, ये सभी स्ट्रक्चर्स जो हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सेंसेस आ रहे हैं डिफरेंट सेंस ऑर्गन से, उनको यहाँ पर वेरियस रिफ्लेक्सेस को समझती हैं. ओके, सो सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया, यू हैव ऑडिटरी एरिया जिसमें कि हम जो हमने सुना है वो हम यहाँ पर समझ सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली जो है हमारा ब्रेन उसको आगे फर्दर एक्शंस देगा. सो ऑल दीज एरियाज आर प्रेजेंट इन द ब्रेन. सो फॉर एग्जांपल इन दिस डायग्राम यू कैन सी एंटीरियर स्पीच एरिया, ब्रोकाज एरिया जिसको हम बोलते हैं. यू हैव द पोस्टीरियर स्पीच एरिया जिसको हम वर्निकीज एरिया बोलते हैं. प्राइमरी विजुअल एरिया है हमारे पास, सेकेंडरी विजुअल एरिया है हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के ऊपर. देन यू हैव प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया विच इज प्रेजेंट. सो ऑल दीज एरिया आर प्रेजेंट ऑन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन. ऑल्सो ये जो रीजन्स हैं इनको हम एसोसिएशन एरियाज भी बोलते हैं क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ओके, जैसे कि मान लो कि अगर डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स को एक साथ मिलके कुछ काम करना है, सो इंटरसेंसरी एसोसिएशंस जो चाहिए होंगी वो इन एरियाज में होती हैं. देन मेमोरी जो हमारी स्टोर होती है, जो इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करके रखते हैं वो इन एरियाज में होती है. कम्युनिकेशन अगर होगा, सो दैट इज ऑल्सो हैपनिंग इन सच एरियाज ऑफ द ब्रेन. सो देयरफॉर वी कॉल these are the regions which are called as association areas which are present on the cerebral cortex of the brain. The next part of forebrain is thalamus. Thalamus is the second part of the forebrain और एक major coordinating center होता है sensory और motor signals के लिए. ओके, और ये एक coordinating center है सभी motor और sensory signals के लिए. Thalamus is also a sensory relay, for example, in visual, in auditory, in somatosensory and gustatory systems. Gustatory matlab something which we are tasting. Okay, it is also having the significant role in activities like emotion. It is having a significant role in activity like memory storage, arousal, the sensory motor association functions of the brain. So this is the main function of the basically thalamus, where it is relaying all the sensory and the motor signals to the cerebral cortex. The third part of forebrain is hypothalamus. Hypothalamus के अंदर बहुत सारे सेंटर्स होते हैं जो कि हमारे डिफरेंट बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना. ओके, सो दिस हाइपोथैलेमस इज इन्वॉल्व इन ऑल सच फंक्शंस. अगर हमको इफ यू आर फीलिंग थर्स्टी, इफ यू आर फीलिंग हंग्री, सो वो सभी सेंटर्स भी हाइपोथैलेमस में लोकेटेड होते हैं. ओके, एंड देन
ऑल्सो वेरियस हॉर्मोन्स आर रिलीज बाय द हाइपोथैलेमस, जिसको हम हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स बोलते हैं। ओके, सो दीज हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स आर बेसिकली जो कि न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं उनसे सिक्रीट हो रहे हैं, एंड देन दे विल बी एक्टिंग फर्दर एंड पिट्यूटरी ग्लैंड में जाकर अकॉर्डिंगली ये वेरियस हॉर्मोन्स का सिक्रीशन कराएंगे। ठीक है, सो हाइपोथैलेमस में बहुत सारे हॉर्मोन्स जो रिलीज होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स। So the next is limbic system. Limbic system basically consists of inner parts of the cerebral hemisphere, जो भी cerebral hemisphere के inner parts हैं, along with structures such as amygdala and hippocampus, ये सभी मिलके limbic system बनाते हैं या फिर हम limbic lobe भी कह सकते हैं। Now what are the various functions? Hypothalamus के साथ मिलकर ये सभी काम करते हैं वेरियस इमोशनल रिएक्शंस को हमारे रेगुलेट करना, सेक्सुअल बिहेवियर्स को रेगुलेट करना, जैसे कि इमोशनल रिएक्शंस में यू कैन हैव एक्साइटमेंट, प्लेजर, वेरियस फीलिंग्स ऑफ रेज, किसी से बदला लेने की फीलिंग, फियर ऑफ समथिंग, मोटिवेशन। सो ये सभी इमोशनल रिएक्शंस हैं जो कि हमारे लिम्बिक सिस्टम से कंट्रोल होते हैं। एंड व्हाट ऑल आर द पार्ट्स ऑफ लिम्बिक सिस्टम? इनर पार्ट्स ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर along with amygdala and hippocampus, they form the limbic system in our brain. The second part of the brain is the midbrain. Now let us see what is midbrain. Midbrain is located in between thalamus and hypothalamus of the forebrain and pons of the hindbrain. So midbrain कहाँ present होगा? फोरब्रेन के हाइपोथैलेमस और थैलेमस के बीच में और हाइंड ब्रेन के पॉन्स के बीच में। ओके, सो इन दोनों के बीच में ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर विच यू कॉल एज मिड ब्रेन। फाइन, सो यू कैन सी मिड ब्रेन की लोकेशन कहाँ पर है। ये प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस के बीच में और पॉन्स के बीच में। अब हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? फोरब्रेन का पार्ट है, और पॉन्स किसका पार्ट है? हाइंड ब्रेन का पार्ट है। सो इन दोनों के बीच में ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज व्हाट यू कॉल एज midbrain. Okay, now the canal which is called as cerebral aqueduct, एक canal है जिसको हम cerebral aqueduct कहते हैं, वो पास करती है midbrain के बीचों बीच। Now the dorsal portion of the midbrain consists of 4 round swellings। जो midbrain को जब हम सामने से dorsal portion उसका देखते हैं, so उसमें हमको 4 swellings दिखाई देती हैं। So this is the first swelling, the second, third and the fourth. You can see the 4 swellings here also. This part is the midbrain. Okay, so यहाँ पर आपको ये corpora quadrigemina की 4 swellings you can see here in the diagram. If we talk about in this diagram, you can see here as well, ये जो ऊपर वाली 2 swellings हैं, one in green color and नीचे these 2 swellings also. Okay, so ये चारों swellings को मिलके हम बोलते हैं corpora quadrigemina. Okay, so quadri means 4. So ये जो 4 round lobes हैं या फिर 4 round swellings हैं, इनको हम corpora quadrigemina बोलते हैं, and they are present in the midbrain when we see it from the dorsal aspect. The third part is the hindbrain, and hindbrain में basically कौन सी चीजें आती हैं? Pons, cerebellum and medulla oblongata. So you can see pons here, then you have medulla oblongata and cerebellum. So these 3 portions form the hindbrain of the brain. Now where is it located? जो मेड्यूला ब्रेन का है वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। ओके, सो जो स्पाइनल कॉर्ड और मिड ब्रेन के बीच में पोर्शन है ब्रेन का, दैट इज योर हाइंड ब्रेन, क्योंकि जो मेड्यूला है वो फर्दर आगे स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू हो जाएगा। सो दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। जो मेड्यूला के आगे का जो पार्ट है, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। ओके, एंड जो मेड्यूला है उसके अंदर बहुत सारे हमारे कंट्रोल सेंटर्स होते हैं, जिसको जैसे कि फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन का कंट्रोल सेंटर हो गया, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस का कंट्रोल सेंटर हो गया, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस का कंट्रोल सेंटर हो गया। सो ऑल दीज कंट्रोल सेंटर्स आर प्रेजेंट इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन का कंट्रोल सेंटर है तो वी कॉल इट एज न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ओके, सो दिस इज व्हाट इज सेंडिंग द कांस्टेंट रिफ्लेक्सेस फॉर द रेस्पिरेशन। सो द नेक्स्ट पार्ट इज ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में क्या क्या चीजें आती हैं? ब्रेन स्टेम में 3 मेन चीजें हैं, मिड ब्रेन, pons और medulla oblongata. Okay, so this portion midbrain, pons and medulla oblongata, ये तीनों मिलकर brain stem बनाते हैं। Now what is brain stem? This is basically the connection between the brain and the spinal cord. हमारे brain और spinal cord के बीच का connection जो है
उसको हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। और इसमें मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा ये 3 पार्ट्स आते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट ब्रेन स्टेम। I hope you have understood the brain structure and parts of brain, and in the next video we will be discussing about reflex arc and reflex action in detail. If you have liked the video, please subscribe the channel, and if you have any doubts, please write in the comment section. I'll make sure that I reply to your doubt. Thank you.